Yes, ma'am, you may begin with your lecture within 3 seconds. Good afternoon, all of you. So today we will be learning about feasibility study. Okay, now look, before we go to feasibility study, let us, take this opening case of the Delhi Metro Rail Corporation. As all of you know that, Delhi was the first to get metro. Okay, and look, when this thing was conceptualized, okay, when it was thought that, Delhi should get a metro, then basically the main problem that was intended to be solved was that we wanted to give people an alternative mode of transport. And like it happens in developed countries that people they have very very fast trains and bullet trains in fact. So we have not yet come to bullet trains, but yeah, we wanted to give an alternative mode of transport that was running at a decent speed. Okay, and it is basically going to result in मतलब लोगों को ज़्यादा convenience हो जाएगी. अब देखो, before the government thought of accepting the project, there was extensive feasibility studies conducted. You know that whether we should go for this metro thing or not. जैसे आपको फाइनेंशियल एस्पेक्ट देखना पड़ेगा, तो जैसे अगर आपको पता है कि हमारा जो मेट्रो है वो जापान की टेक्नोलॉजी से आया था, ठीक है, और वहां पे बोला गया था कि फर्स्ट 10 years के लिए जो प्रॉफिट्स आएंगे दे विल गो टू द जापानीज गवर्नमेंट एंड द इंडियन गवर्नमेंट डजंट हैव टू पे एनीथिंग. ओके, ऑल द डेवलपमेंट कॉस्ट विल बी borne by them. Yeah, but the only condition was, I think, for 6 or 10 years, I'm not very sure, that the revenues will go to Japanese government, they will not come to the Indian government, okay, or to the Delhi government. तो फाइनेंशियल एस्पेक्ट्स देखने हैं आपको, ऑपरेशनल एस्पेक्ट्स देखने हैं आपको, टेक्निकल एस्पेक्ट्स देखने हैं कि आपके पास क्या टेक्नोलॉजी है वो सब काम करने के लिए. चलो टेक्नोलॉजी अगर जापान से आ भी जाएगी तो इज योर लेबर ट्रेंड ओवर है, और यू कांट कॉल लेबर फ्रॉम जापान एंड टेल देम दैट कम एंड वर्क इन इंडिया. So you have to give that sort of training to your labor and everything. तो टेक्निकल एक्सपर्टीज देखना है या नहीं है, एनवायरमेंटल एस्पेक्ट्स देखना है. आपको याद होगा जब मेट्रो बन रही थी तो इतने सारे लोगों का जो घर है वो लेना पड़ा था, बिकॉज इट वाज कमिंग अंडर दी अंडर देयर ब्लू प्रिंट. ओके, तो वो कैसे होगा, आप पेड़ काटे गए बहुत सारे, तो एनवायरमेंटल एस्पेक्ट्स को कैसे हैंडल करा. तो ये सारी चीजें आपको ध्यान में रखनी पड़ती है व्हेन एवर यू आर थिंकिंग ऑफ गोइंग आउट फॉर अ प्रोजेक्ट. ओके, now look, when in the feasibility analysis you see that the benefits that you are getting out of the project, they are more than the costs that you are incurring, then you should definitely go for the project. So like it happened in the case of Delhi government, they saw that this metro thing is definitely going to be a boost, and as you can see, obviously it was a very good decision. And now most of the Delhi kya ab to NCR and even beyond that, we are covered by metro. Most of the cities are having metro now, so it has become a very big success story. Fine. So, look, now let us actually start with this feasibility analysis. Now, when you talk about this feasibility analysis, तो आप कर क्या रहे हो? जो आपके दिमाग में एक बिजनेस आइडिया आया है, आपको उसकी feasibility चेक करनी है. आपको देखना है कि क्या वो आइडिया ऐसा है कि वो ऑपरेशनलाइज हो सकता है, क्या वो एक्चुअली प्रैक्टिस में आ सकता है या नहीं आ सकता. तो इस चीज को चेक करने के लिए कि वो टेक्निकली और कमर्शियली फीजिबल है या नहीं है, इस चीज को चेक करने के लिए हम एक फीजिबिलिटी एनालिसिस करते हैं. ठीक है, देखो, हो सकता है बहुत बार आपका कंसेप्ट बहुत ज्यादा अच्छा हो, ठीक है, but you have to see that whether it is commercially viable or not. Like you might think कि चलो हम एक ऐसा concept निकालते हैं कि हेलीकॉप्टर में लोगों को लेके जाएंगे और we will make them have, let us say, lunch or dinner in that helicopter or whatsoever, या फिर एरोप्लेन में हम उनको कराएंगे. अरे आप बना तो रहे हो, बट आप ये देखो क्या कमर्शियली वायबल है, कितने लोग इतने पैसे देने को तैयार होंगे ना जस्ट टू गो ऑन अ हेलीकॉप्टर और ऑन सच एन एयरप्लेन जस्ट टू हैव अ डिनर विद whomsoever they want to. तो आपको देखना है कि क्या किसी आइडिया की कोई टेक्निकल फीजिबिलिटी है या नहीं है, कमर्शियल फीजिबिलिटी है या नहीं है. जैसे ड्रोन्स आए थे शुरू में, यू ऑल मस्ट बी नोइंग ना, वो ड्रोन्स जो बचपन में आप लोग खेलते होगे, वो हेलीकॉप्टर टाइप, रिमोट कंट्रोल टाइप. So these drones, now if you talk about these drones, you will see that they have become commercially so viable. People are like Hyderabad में I just read a case study that वहाँ पे बहुत डेंगू के केसेस हो रहे हैं, तो उन्होंने ड्रोन्स की हेल्प से
जितने भी वो सीवेज और गटर्स हैं उनमें जा जाके उन्होंने दवाइयां डाली है with the help of drones. So they have made those sort of machines, they have trained those drones that way. So if any idea is coming to your mind, you have to see that, पहला एक तो कि हाँ वो आइडिया क्या कुछ प्रोडक्ट या सर्विस में बन सकता है या नहीं बन सकता, दूसरा क्या उससे पैसा कमाया जा सकता है या नहीं कमाया जा सकता, ये दोनों एस्पेक्ट्स हमें देखने पड़ेंगे, ठीक है। Now, look, feasibility analysis is nothing but you are basically examining the viability of the business idea. Like I told you, viability is in the sense of technical and commercial. It means assessment of the potential and practical applicability of business idea. तो आपको देखना है कि क्या उस आइडिया के अंदर कोई पोटेंशियल है, पोटेंशियल अगेन कमर्शियल के टर्म्स में, और क्या वो प्रैक्टिकल है या नहीं है, क्या उसका कोई प्रोडक्ट या सर्विस बन सकता है या नहीं बन सकता, ठीक है। इसके अलावा सिर्फ प्रोडक्ट और सर्विस को नहीं देखना, आपको बिजनेस एज अ होल भी देखना है, ठीक है। हो सकता है आपको लग रहा है बहुत बढ़िया प्रोजेक्ट आ जाएगा, सब कुछ आ जाएगा, ठीक है, आपको लग रहा है आपके पास मैनेजमेंट के लिए लोग नहीं है, या आपको ये लग रहा है कि मेरे पास तो प्रोडक्ट बन जाएगा, सब कुछ बन जाएगा, बट मेरे पास मशीनरी नहीं है, या आई डोंट हैव द पीपल हु कैन डू दिस टाइप ऑफ वर्क फॉर मी। तो बहुत सारी चीजें होती है, तो यू बेसिकली हैव टू एनालाइज how practical your concept is, okay। तो देखो, इसके लिए हम लोग कुछ कुछ क्वेश्चंस पूछते हैं एंटरप्रेन्योर से, जैसे इज दिस बिजनेस पॉसिबल, देन इज द बिजनेस प्रैक्टिकेबल, देन प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस ऑफ बिजनेस इन द फ्यूचर। ऑब्वियसली बात है कि आप एक बिजनेस कर रहे हो तो कोई ना कोई रिस्क ऑफ फेलियर तो होगा ना, तो लेट अस से द चांसेस 50-50 कि 50% सक्सेस हो सकता है, 50% फेलियर हो सकता है। तो यू हैव टू सी दैट व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी, जाके जब आप फिजिबिलिटी एनालिसिस करोगे तो आपको कुछ आइडिया हो जाएगा दिमाग में कि वेदर आई विल गेट सक्सेस इन दिस बिजनेस और नॉट, डू आई हैव एक्सेस टू ऑल द रिसोर्सेज रिक्वायर्ड टू स्टार्ट द बिजनेस, दिस इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, ठीक है। क्या क्या रिसोर्सेज है मेरे पास, जैसे जब दिल्ली गवर्नमेंट ने सोचा कि मेट्रो लगानी है तो क्या उनके पास रिसोर्सेज थे सारे के सारे, कुछ थे कुछ नहीं थे, ठीक है, उन्होंने कोलैबोरेशन किया, जापान के साथ मंगवाए, तो आपको देखना है कि क्या आपके पास सारे रिसोर्सेज हैं या नहीं है, ठीक है। अब फीजिबिलिटी एनालिसिस की जरूरत क्यों है, देखो ऑब्वियस सी बात है कि अगर देखो फीजिबिलिटी एनालिसिस इज बेसिकली अ प्री रिक्विजिट टू योर बिजनेस प्लान। अगर आपको अपना बिजनेस प्लान बनाना है, मतलब आपको अपने बिजनेस को प्रॉपर एक शेप देना है, एक डॉक्यूमेंट में सारी बातें लिखनी है कि बिजनेस कैसे रन होगा, तो बिफोर यू प्रिपेयर द बिजनेस प्लान इट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू टू डू द फीजिबिलिटी एनालिसिस, ओके। अब फीजिबिलिटी एनालिसिस से और क्या पता चलता है, अगर कोई शॉर्टकमिंग्स या गैप आपको लग रहे हैं कि हमारे प्रोजेक्ट में हो सकते हैं, तो वो आपको टाइमली पता चल जाते हैं, एंड यू कैन टेक मेजर्स टू रिजॉल्व देम। सो लेटेस्ट से जैसे हमने ये दिल्ली मेट्रो के बारे में बात की, आपको पता था कि इंडिया की लेबर जो है वो अनस्किल्ड लेबर काम करेगी, देखो मेट्रो पे, ठीक है। अब वो अनस्किल्ड लेबर को आप क्या कर सकते हो, आपको पहले ही पता है, जब उनको ट्रेनिंग नहीं है इतनी एडवांस्ड मशीनरीज को हैंडल करने की या उस तरह का, let us say those people who will be operationalizing all those things, let us say they are not that competent to think that way, so obviously you can send them to Japan, you can you can tell them that you go and you get yourself trained over there for 6 months and then you come back and then tell us that whether the project is possible or not, whether Indian whether as per the Indian scenario, जैसे इंडिया के अंदर अगर आप इतनी बड़ी बड़ी रोडें बंद कर दोगे, और इंडिया के अंदर आप सबको पता है कि अंदर वाटर की इतनी प्रॉब्लम रहती है, सीवेज वगैरह की, दिल्ली में कभी कहीं से पानी लीक होता है, कभी कहीं से पानी लीक होता है, तो क्या है मतलब अब्रॉड तो देखो सारी मेट्रो अंडरग्राउंड बनती है, ठीक है। इट इज ओनली इन इंडिया दैट दे हैव मेड इट अबव द ग्राउंड, बिकॉज नीचे प्रॉब्लम है ना, हमारी धरती के नीचे भी प्रॉब्लम है, हमारा सारा सिस्टम इतना इंटरनेशनली इक्विप्ड नहीं है। तो आपको देखना है कि अगर कोई शॉर्टकमिंग या गैप्स है, तो अगर आपको टाइमली पता चल जाते हैं तो आप कैसे उसको सॉल्व कर सकते हो, यू कैन कम अप विद आइडियाज, then obviously you will get to know the viability of the concept, हो सकता है कंसेप्ट, नहीं हो सकता, अगर हो सकता है तो इट विल बूस्ट अप द कॉन्फिडेंस ऑफ द एंटरप्रेन्योर, इट विल रिड्यूस योर चांसेस ऑफ बिजनेस फेलियर। अगर लग रहा है कि बिजनेस का पोटेंशियल नहीं है, तो वो फीजिबिलिटी एनालिसिस में ड्रॉप हो जाएगा, आप आगे नहीं जाओगे, आपका टाइम एफर्ट नहीं वेस्ट होगा, आपका पैसा वेस्ट नहीं होगा, ठीक है। इट सेव्स द एंटरप्रेन्योर फ्रॉम पोटेंशियल बिजनेस लॉसेस, ये तो भी हमने बोला है। और अच्छा हाँ, और एक चीज और है, देखो जब आप अपना बिजनेस प्लान बनाते हो, ठीक है,
तो बेसिकली आप इन्वेस्टर्स से बहुत बार पैसा मांगते हो, यू गो टू बैंक्स, यू गो टू पीपल एंड यू टेल देम दैट दिस इज द अपॉर्चुनिटी दैट आई एम थिंकिंग फॉर, गिव मी मनी फॉर इट. So they will give you money, before that they are going to study your documents, they are going to see that have you done any feasibility analysis. वो feasibility analysis पढ़ेंगे आपका, देखेंगे कि क्या इसका प्रोजेक्ट का कोई फ्यूचर है या नहीं है, उसके बाद वो आपको पैसा देंगे. ठीक है, अब इसके अंदर हम क्या क्या feasibility analysis में कर सकते हैं. So look, first is the product or service feasibility. तो सबसे पहले तो हमें ये देखना है कि जो भी आप प्रोडक्ट या सर्विस ऑफर करने का सोच रहे हो, क्या वो बनाना पॉसिबल है भी या नहीं है. So you have to see over here first of all that whether the product can be made or not. If it can be made, would it be desirable and demanded by the customers or not? Okay, so you can ask again the following questions like, does your product excite the customer? Would he be willing to buy it? Okay, what attributes are will make him desire the product. क्या ऐसी चीज है जिससे आपको लगता है कि कस्टमर जो है वो प्रोडक्ट खरीद लेगा. जैसे आजकल मैं बात करूं, देयर इज दिस न्यू ट्रेंड दैट हैज स्टार्टेड स्पेशली विद गर्ल्स, इज दैट अगर मास्क बहुत सुंदर मिल रहा है ना किसी ड्रेस के साथ, तो ड्रेस सुंदर हो ना हो, वो ना ड्रेस खरीद लेंगे क्योंकि मास्क बहुत सुंदर है उसके साथ. एंड देन दे थिंक दैट that is something extra. या फिर वैसे अगर एक example लो that maybe you are into fashion designing or something and you're making very pretty masks. Let us say you're making customized masks with their name and everything. So what will that do? That will automatically excite girls. Okay, they will think that वाह यार एक extra mask free में दे रहे हैं ये लोग, वो भी customize करके, तो खरीदना चाहिए. ठीक है, तो you have to see that on what factors will you sell. So what are you offering? Then what नीड डज द प्रोडक्ट सेटिस्फाई. ऑब्वियसली बात है, देखो कोई ना कोई नीड तो सेटिस्फाई होगी तभी आप मार्केट में आओगे, बिना नीड के तो आप नहीं आओगे मार्केट में. डज इट फिल अ गैप इन द मार्केट. इसका मतलब ये है कि अगर आपको दिख रहा है कि क्या आपका प्रोडक्ट एक ऐसा प्रोडक्ट है जो ऑलरेडी मार्केट में है और आपने उसको इमिटेट करके निकाल दिया है. क्या आप एक ऐसी कंपनी हो, या फिर आप एक ऐसी कंपनी हो जिसने कुछ गैप देखा मार्केट में, देखा कि हाँ कुछ मिसिंग है मार्केट में, and then you went into the market and then you are trying to fill that gap. Then does it solve the customer problem? अब बहुत बार होता है कि कस्टमर को कोई प्रॉब्लम है, दिख रहा है उसको कि चीजें नहीं हो रही हैं ठीक से, तो क्या आपका पोर्टल जो है वो कस्टमर की प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकता है, वो देखो आप. Then you should also see that what is the right time to introduce the product. ओके, तो जैसे जनरली हम लोग ये कहते हैं कि जैसे दिवाली के टाइम पे इंडिया में मैक्सिमम सेल्स होती है, बिकॉज पीपल आर इनटू सो मच ऑफ बाइंग. वेडिंग होती है, लोग पागल हो जाते हैं, कुछ भी खरीदते हैं वेडिंग के टाइम पे. तो यू हैव टू सी दैट इफ यू टॉक अबाउट द इंडियन मार्केट, पीपल दे गो मैड ड्यूरिंग वेडिंग्स, पीपल दे गो मैड ड्यूरिंग दिवाली. तो वो जो है टाइम है, वो बड़ा अच्छा टाइम है कोई भी प्रोडक्ट निकालने का, क्योंकि लोगों को प्रोडक्ट चाहिए नो मैटर व्हाट द सिचुएशन. ओके, सिमिलरली जैसे आप अब पैंडेमिक के बारे में बात करो, तो अब पैंडेमिक में लेट अस से यू आर अ सैनिटाइजर कंपनी, और आप सोच रहे हो कि अभी मैं सैनिटाइजर लॉन्च करूं, तो अभी लॉन्च करने का कोई फायदा नहीं है, इंडिया में अभी कुछ नहीं हो रहा. ओके, we are seeing that we might witness a third wave in the first month of January. This is what the forecast says. So a probable time, a right time to launch that sanitizer, maybe it would be in January. Why? Because that time the demand is going to be very high, because cases are going to increase and everybody will be demanding a sanitizer. Okay, so like that. Then after that what you have to do, you can even do concept testing. अभी concept testing में क्या होता है कि आप basically अपने प्रोडक्ट का एक प्रोटोटाइप या कोई भी प्रोडक्ट बनाते हो, और उसके बाद ना पोटेंशियल कस्टमर्स और इंडस्ट्री के जो एक्सपर्ट्स होते हो उनको बुलाते हो और उनका फीडबैक लेते हो, और उनसे पूछते हो कि बताओ कि आपको प्रोडक्ट में क्या लग रहा है, क्या खामी है, कैसे प्रोडक्ट को इम्प्रूव कर सकते हैं. ओके, गिव अस सजेशंस, टेल अस हाउ कैन वी इम्प्रूव द प्रोडक्ट. सो लुक, दिस इज वेरी वेरी यूजफुल. व्हाई इज इट यूजफुल? बिकॉज अभी आप सिर्फ टेस्ट कर रहे हो, आपने सिर्फ एक या दो क्वांटिटी बनाई है. अगर कोई भी प्रॉब्लम है तो इस स्टेज पे उसमें सुधार करना बहुत ईजी है. अगर आपने मार्केट में लॉन्च कर दिया और बाद में लोग कह रहे हैं कि ये प्रोडक्ट में कमी है, वो प्रोडक्ट में कमी है, ये है फलाना है, इट इज गोइंग टू ब्रिंग अ बैड नेम टू द कंपनी. तो बेटर ये है कि शुरू में ही इनवाइट कर लो प्रपोजल, और पूछ लो लोगों को, अक्लमंद लोगों को बुलाओ, इंटेलिजेंट लोगों को बुलाओ, और उनसे पूछ लो पहले कि क्या लग रहा है, क्या कमी है, और उसको वहीं से सुधार करके फिर मार्केट में लॉन्च करो. ठीक है.
Then another thing that these days startups are doing is that they go for a buying intention survey. Matlab, before you launch the product, you basically do a survey and you ask them that if we sell you this type of a product, it has this, then will you be ready to buy it? At what price would you be ready to buy it? और ऐसे आप कहोगे मैम कौन भरता है ऐसे सर्वे? बेटा बहुत सर्वेज आपको ऐसे मिलते हैं. एंड these people they offer you very good incentives. वो बोलेंगे आपको कैशबैक देंगे 200 रुपए का, इतने रुपए का वो देंगे, और लोग भरते हैं, बहुत लोग भरते हैं. ठीक है, तो ये चीजें होती है. आफ्टर दैट द नेक्स्ट थिंग इज इंडस्ट्री एनालिसिस और टारगेट मार्केट एक्सेसिबिलिटी. सो बेसिकली यहाँ पे हम प्राइमरी और सेकेंडरी रिसर्च कर रहे हैं. तो देखो यहाँ पे सबसे पहले तो हमें इंडस्ट्री का मतलब पता होना चाहिए. इंडस्ट्री देखो एक ऐसा प्लेस है जो सिमिलर या सब्सटीट्यूट प्रोडक्ट्स बना रहे हैं. ठीक है, जिस भी सेगमेंट में आप एंटर करना चाह रहे हो. ठीक है, अब देखो बहुत बार क्या होता है कि बिफोर यू एंटर इनटू एन इंडस्ट्री, व्हाट यू ट्राई टू डू इज दैट यू ट्राई टू स्टडी द अट्रैक्टिवनेस ऑफ द इंडस्ट्री. अब अट्रैक्टिवनेस ऑफ द इंडस्ट्री आप कैसे कर सकते हो? आप वहां पे जाके उनके डेमोग्राफिक कैरेक्टर्स देख सकते हो. अच्छा, क्या ये प्रोडक्ट यंग जनरेशन बाय करती है, या ये प्रोडक्ट जो है वो ओल्ड जनरेशन ट्राई करती है? ठीक है, टारगेट ग्रुप क्या है, कौन से लोगों को टारगेट कर रहे हैं यहाँ पे? रूरल कस्टमर्स को टारगेट कर रहे हैं, अर्बन को कर रहे हैं, किसको कर रहे हैं टारगेट? व्हाट इज द ग्रोथ पैटर्न इन द इंडस्ट्री? ग्रोथ कितनी है इंडस्ट्री में? देखे तो जरा, क्या पिछले 10 सालों के अंदर ऐसा है कि द इंडस्ट्री हैज ग्रोन बाय 400%, 500%, or is it that the industry has grown only by 10%? तो ग्रोथ पैटर्न क्या है इंडस्ट्री का? तो नंबर ऑफ फर्म्स कंपीटिंग अगेंस्ट ईच अदर, ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है. ठीक है, कि कितनी फर्म्स है जो कम्पीट कर रही है एक दूसरे के साथ. अब अगर आप मानो आज आप सोचते हो कि मैं जियो के टक्कर में एक नेटवर्क खोल लूं, ठीक है, तो पहले देखो तो ग्रोथ पैटर्न तो देखो इंडस्ट्री में क्या है. नंबर ऑफ फर्म्स तो देखो जो कम्पीट कर रही है एक दूसरे के साथ. क्या कोई प्रॉफिट मार्जिन है? क्या कोई एंट्री बैरियर है? जियो जितना अगर जियो को टक्कर देनी है तो फिर उतना ही इन्वेस्टमेंट चाहिए. एंट्री बैरियर है बहुत बड़ा इन टर्म्स ऑफ इन्वेस्टमेंट, इन टर्म्स ऑफ गवर्नमेंट अप्रूवल. Then profit margin, you can't charge more than what these people are already charging. Probably you will have to sell less, like Jio did एक साल के लिए free services. So can you do all those things? तो वो देखना पड़ता है, इंडस्ट्री का एनालिसिस करना पड़ेगा. ठीक है, उसके बाद है आपकी टेक्निकल फीजिबिलिटी या कंसेप्ट टेस्टिंग. अब टेक्निकल फीजिबिलिटी क्या कहती है? टेक्निकल फीजिबिलिटी ये कहती है कि भैया क्या टेक्नोलॉजी यूज करोगे अपना प्रोडक्ट या सर्विस यूज करने के लिए. प्रोडक्ट में ही अप्लाई नहीं होती, सर्विस में भी अप्लाई होती है टेक्नोलॉजी. मानो आप कोई ऐप बना रहे हो, तो क्या आप देखो तो कि क्या आपको पता है कि कौन कोडिंग करेगा, कैसे वो ऐप चलेगा, उसके लिए क्या क्या लोग चाहिए होंगे. तो यू हैव टू बी very open minded. You have to keep your open eyes and you have to see that you're using the latest technology. And then along with that latest technology you have to see that how will you procure that latest technology. क्योंकि हर कोई अपनी टेक्नोलॉजी देने को तैयार नहीं है. लोग अपनी टेक्नोलॉजी बनाते हैं, उसके ऊपर कॉपीराइट पेटेंट लेते हैं. ठीक है, उसके बाद sometimes it is difficult to procure that technology. Then you have to look into all those aspects as well also. Okay, कि टेक्नोलॉजी कहाँ से आएगी उसके लिए. Then commercial feasibility, I think ये तो मैं तुम्हें already समझा चुकी हूँ. This is about money. Okay, कि क्या पैसा कमा सकता है आइडिया या नहीं कमा सकता. ठीक है, अच्छा अभी क्यों जरूरी है कमर्शियल फीजिबिलिटी? क्योंकि देखो आपको ये पता चलता है कि क्या कॉस्ट जो है वो कवर हो पाएगी. चलो शॉर्ट टर्म में नहीं हो पाएगी तो लॉन्ग रन में तो होनी चाहिए, तभी तो मार्केट में रहोगे. ठीक है, आप कॉस्ट के हिसाब से फिर अपनी प्राइस डिटरमिन कर सकते हो, प्राइस के बेसिस पे अपनी डिमांड डिटरमिन कर सकते हो. ठीक है, कंपटीशन लेवल आपको पता चल जाएगा कि आप जिस प्राइस पे सेल करो उस प्राइस पे क्या कंपटीशन आप फेस करोगे मार्केट में. तो ऑल दोज थिंग्स वुड बी क्लियर टू यू. देन नेक्स्ट इज फाइनेंशियल फीजिबिलिटी. अब देखो फाइनेंशियल फीजिबिलिटी के अंदर हमें ये देखना है कि आपने सोच तो लिया कि you have made the entire picture, everything is clear, I have my plant ready, I have my technology ready, okay, I have my service ready, product ready, everything is ready. बेटा पैसा भी तो चाहिए ना. कहाँ से लाओगे पैसा? क्या तुम्हारे पास इतना पैसा है? ओके, इफ यू हैव दैट मच ऑफ पैसा, वेरी गुड. अगर नहीं है तो फिर सोचना पड़ेगा. देखो कि अगर लैंड चाहिए, प्लांट एंड मशीन चाहिए, फर्नीचर एंड फिक्सचर्स चाहिए, तो कहाँ पे खरीदोगे? मतलब कहाँ कितना पैसा चाहिए होगा खरीदने के लिए, कहाँ से वो पैसा आएगा?
ओके, यू हैव टू थिंक अबाउट ऑल दोज थिंग्स। फिर वर्किंग कैपिटल कहाँ से आएगा? अच्छा चलो मानो आपने बिजनेस स्टार्ट कर लिया, सब कुछ कर लिया, अब बिजनेस चलाने के लिए भी तो पैसा चाहिए ना। करोड़ों रुपए तो बिजनेस चलाने के लिए ही चाहिए, बिकॉज यू नो यू आर गोइंग टू बाय इन्वेंट्री, इट इज गोइंग टू रिमेन इन दी साइकिल, लोग भी उधार पे खरीदते हैं, कैश नहीं देते हैं, तो बहुत बार वर्किंग कैपिटल की कमी की वजह से हो सकता है आपका बिजनेस ना चले, तो यू हैव टू सी कि वर्किंग कैपिटल कैसे अरेंज होगा। ठीक है, फिर ब्रेक इवन एनालिसिस आप देखो, ब्रेक इवन एनालिसिस का मतलब ये है कि यू नो जहाँ पे आपके आप योर कॉस्ट वुड बी इक्वल टू बेसिकली यू नो योर रेवेन्यूज, तो वो वाला पॉइंट कौन सा है आपका, वो देखो, और देखो कि क्या आप ब्रेक इवन एनालिसिस के ऊपर जा पाओगे या नहीं जा पाओगे। Fine. And after that, try to project the future sales of the company. You know, all these things, they are necessary whenever we talk about feasibility analysis. ठीक है, I think feasibility analysis के बारे में तो हमारी सारी बातें खत्म हो गई है. Now I would like to start with the business plan. Just give me a minute. Okay. So it says that business plan है अभी हमारा, ठीक है, तो केस स्टडी पढ़ना चाहोगे तो पढ़ लो, एक सेकेंड पढ़ लो, चलो लेट अस जस्ट रीड दिस. Look, there is this very popular company by the name of HMV, which is a British music company, and ये जो है इसके बहुत सारे stores थे all across the country. अब look, before the listing of this HMV on London Stock Exchange in 2002, it had opened multiple stores in Europe and America. But little did the company and its MD Steve not apprehended the looming dangers of online business retailers, downloadable music, supermarket discounting, and Android iOS based smartphones, making music experience much more cost effective and enjoyable. The developments in the IT sector uprooted the brick and mortar model of HMV, and with just a click of the mouse, it had to revise its entire business plan, and basically it was on the verge of bankruptcy. ठीक है, तो यहाँ पे आप ये देख रहे हो कि आपने कितनी स्टडी कर ली, कुछ भी क्यों नहीं कर लिया. देखो आपका जो बिजनेस प्लान है, बिजनेस प्लान ऐसा नहीं है एक बार बना लिया उसके बाद आप शांति से बैठ गए. ठीक है, बिजनेस प्लान को आपको चेंजिंग नीड के अकॉर्डिंग चेंज करना पड़ेगा. तो जैसे यहाँ पे इन्होंने एग्जांपल दिया है कैसेट्स का, जो कि आजकल कोई नहीं सुनता. Similarly, there was a time when you know we used to have those DVDs and CDs जो हम लगाते थे CD प्लेयर में, और लगा के हम लोग मूवीज देखते थे, सब कुछ करते थे. Now gone are those times. Netflix and Amazon Prime have changed everything. They have changed even the concept of TV. People don't even want to watch TV now. People want to watch only series, like it is the case with your generation. You don't want to watch TV at all. सब कुछ है तो Amazon और Netflix पे सब कुछ वहीं देख लेंगे, कोई जरूरत ही नहीं है. ठीक है, तो आपको देखना पड़ेगा कि यू नो, आई डोंट नो मैं तुमसे कभी बात की है या नहीं की है. आई टोल्ड यू दैट यू नो देयर वाज दिस नेटफ्लिक्स एक्चुअली वेंट टू टाटा स्काई विद द आइडिया दैट यू नो जो हम कह रहे हैं आप इसको अपने मॉडल में इनकॉर्पोरेट कर लो, and you know we will sell this idea to you, you do it this way, and you will make lots of profits. उन्होंने ना उसको हंस के बाहर निकाल दिया. उन्होंने कहा क्या बातें कर रहे हो आप, इंडिया में ये सब नहीं होने वाला, कोई नहीं आएगा. कोई बात नहीं, Netflix had its own plan. Now you know it is such a big company, like there's just no competition to it. तो बिजनेस प्लान जो है ना आपका, वो आपको जो भी एग्जिस्टिंग सर्कमस्टांसेस हैं उसके लाइट में रिवाइज करते रहना चाहिए और नया बिजनेस प्लान बनाते रहना चाहिए, क्योंकि वो आजकल की मार्केट की नीड है. दैट यू हैव टू रिवाइज द बिजनेस प्लान नो मैटर वट एवर द थिंग इज. Fine. And now let us come first of all to a businessman plan. अब ये business plan है क्या? देखो, this is nothing oral. This is something which is in written. It is a very, very comprehensive document which summarizes the operational and financial objectives of a business and contains the detailed plans and budgets reflecting how the objectives are to be realized. It is the roadmap for the success of the business. तो basically क्या है, एक written document है जिसके अंदर mission लिखा होगा, कंपनी का विजन लिखा होगा कि आज से 10 साल बाद हम कहाँ देख रहे हैं अपने आप को, 5 साल बाद हम क्या देख रहे हैं, कहाँ देख रहे हैं आपको, हमारा शॉर्ट टर्म ऑब्जेक्टिव क्या है, हमारा लॉन्ग टर्म ऑब्जेक्टिव क्या है.
इतना प्रॉफिट कमाना है, इतने कस्टमर्स रखने हैं, ठीक है। ऑब्जेक्टिव्स लिस्ट डाउन करेंगे, फिर उसके बाद उसकी स्ट्रैटेजीज लिस्ट डाउन करेंगे। ये नहीं है सिर्फ लिख दिया और हो गया ऑब्जेक्टिव, ये तो बताओ होगा कैसे वो ऑब्जेक्टिव मीट। So you will make a proper blueprint, you will make a proper plan, and you will list down everything that this is my objective. अगर हम आप ही के बारे में बात करें, let us say you are planning your career and you are seeing that you want to go, let us say 3 years down the line to a good B school. So if that is your objective, obviously you have to list down now that you will get enrolled yourself in a good coaching center, you will study every day at least 12 hours, okay, you will make friends that are of that aptitude and who push you towards achieving those goals. तो इस तरह से करके आपको एक रोड मैप बनाना पड़ेगा अपनी पूरी सक्सेस स्ट्रैटेजी का, दैट इफ आई गो टू दी बी स्कूल, हाउ एम आई गोइंग टू अरेंज दी फंड्स, दैट इज आई एम गोइंग टू IIM Ahmedabad, so I need 25 lakh rupees for doing the MBA. I think 25 I'm again underestimating. तो कहाँ से वो पैसा आएगा, कुछ सोच के रखा है दिमाग में, ब्लूप्रिंट है। तो इट्स द सेम विद द बिजनेस। आपने सब कुछ सोच लिया है, बट अब आपको सब कुछ लिखना है, चाहे वो फाइनेंशियल है, चाहे वो टेक्निकल है, चाहे वो कमर्शियल है, चाहे वो प्रोडक्शन से लिंक्ड है, चाहे वो टेक्नोलॉजी से लिंक्ड है। लिस्ट डाउन दैट हाउ आर यू गोइंग टू डू द बिजनेस, तो एवरीथिंग यू हैव टू लिस्ट डाउन। Okay, so now look, business plan. I will just read out this paragraph once. Now look, business plan is a detailed document that encapsulates all the aspects related to project and acts as a source of information for various stakeholders. Okay, तो ये क्या है, आपके कोई भी स्टेक होल्डर है, मानो आपको अपना, आप सोच रहे हो कि भैया मैं प्राइमरी मार्केट में जाके शेयर इशू निकालूंगा, वहां से पैसा लाऊंगा। अरे ऐसे थोड़ा ना लोग पैसे दे देंगे, पहले वो बिजनेस प्लान मांगेंगे ना, पूछेंगे बताओ जी कहाँ है, क्या क्या प्रोजेक्ट कर रहे हो, कौन से बिजनेस में जाओगे, ठीक है, कुछ बनाया है नहीं बनाया आपने, अपना कोई एक्सपेक्टेड P&L, एक्सपेक्टेड की कैश फ्लो कैसा होगा क्या नहीं होगा। तो देखो बहुत जगह तो ना ये एक मैंडेटरी डॉक्यूमेंट है। अगर आप किसी बैंक, वेंचर कैपिटलिस्ट या किसी भी इन्वेस्टर के पास जाओगे और बोलोगे मुझे पैसा दे दो, तो वो आपको पैसा तब तक नहीं देंगे जब तक आप उनको बिजनेस प्लान नहीं दिखाते हो अपना। इट इज अ मैंडेटरी डॉक्यूमेंट दैट यू हैव टू मेक एंड यू हैव टू शो, and that you have to show to them. Fine. Now, what is the need and significance of a business plan? Now, look, obviously this is a written document highlighting the mission and vision of the business, but it is required for various reasons, like which are given over here. First of all, it is required by entrepreneurs who are in need of capital. Like I already said above, ये उसी point का फिर से repetition है। बैंक के पास जाओगे, बैंक कहेगा हमारे लिए तो जरूरी है, बिफोर वी सैंक्शन दिस मच ऑफ लोन, शो अस योर बिजनेस प्लान। लिखा है वहां पे, बिजनेस प्लान दिखाए बिना पैसा नहीं मिलेगा। वेंचर कैपिटलिस्ट के पास जाओगे, बिना बिजनेस प्लान दिखाए पैसा नहीं देंगे वो लोग। किसी भी और इन्वेस्टर के पास जाओगे, फर्स्ट डॉक्यूमेंट दैट दे आर गोइंग टू आस्क यू, व्हाट इज योर बिजनेस प्लान, गिव अस इट इन राइटिंग, ओके, ओनली देन वी विल गिव यू बिजनेस। तो ये बहुत जरूरी है कि आपके पास एक बिजनेस प्लान है अगर आपको पैसा चाहिए तो। Then it is required by the business itself to identify its chances of growth and survival. अब देखो बहुत बार क्या होता है कि आपने बिजनेस सोच लिया, सब कुछ कर लिया, it is not just planning, but when you come to actually implementing things, then it becomes very difficult sometimes, because you don't understand कि पहले लैंड खरीदे या पहले ये खरीदे या पहले मैनेजमेंट को एक्वायर करे, ह्यूमन रिसोर्सेज एक्वायर करे, या टेक्नोलॉजी ले लें, पहले क्या करे। तो अगर आप चाहते हो कि आप मार्केट में अच्छे से ग्रो कर पाओ, सरवाइव कर पाओ, तो अगर आपने एक बिजनेस प्लान बनाया हुआ है तो आपके ऑब्जेक्टिव सही रहेंगे हमेशा। यू विल गेट अ बेसिकली a path that you have to follow for your business. Okay, then it is important for him to chart down its actions. Obviously बात है, जो आपने लिखा है उसी की बेसिस पे आप एक्शन लोगे। अगर आप कह रहे हो कि फर्स्ट ईयर में आई वांट टू अचीव अ प्रॉफिट ऑफ 20% और वट एवर ऑन माई एक्सपेक्टेड कैपिटल, जो भी कैपिटल आपने लगाया है, तो उसी के हिसाब से आपके एक्शंस होंगे, उसी के हिसाब से आपका डिमांड फोरकास्ट होगा, उसी के हिसाब से आपकी मार्केटिंग एक्टिविटीज होंगी, उसी के हिसाब से आप अपना एफर्ट लोगे। सो एवरीथिंग विल गो हैंड इन हैंड। ओके, देन इट इज अ पावरफुल कम्युनिकेशन एंड ऑपरेशनल टूल फॉर अ बिजनेस। ऑब्वियसली बात है, अगर किसी को आपको एक्सप्लेन करना है अपना बिजनेस, आपने मानो एक बिल्कुल ही नए तरह का बिजनेस आप लॉन्च करने जा रहे हो, तो अगर लोगों को एक्सप्लेन करना है कि क्या है ये बिजनेस, ठीक है, मानो अगर आप एक CEO भी हायर करते हो या कोई मैनेजिंग डायरेक्टर हायर करते हो या एम्प्लॉइज हायर करते हो, वो भी पूछेंगे ना बताओ तो क्या कंपनी है, किस लिए हायर कर रहे हो, क्या करना क्या है कंपनी में आके। तो ऑब्वियसली यू कैन टेल देम वंस यू नो योरसेल्फ ना दैट व्हाट द कंपनी इज अबाउट, then you can obviously manage the business effectively.
that we all know. Then you can identify your strengths and weaknesses. This is a very important point. When you start writing down things ना, आपको बहुत clearly पता चल जाता है कि आपकी business की क्या strengths हैं और क्या weaknesses हैं, और एक बार आपको ये पता चल गया ना, तो आप उसको अच्छे से exploit कर सकते हो. जो भी आपकी strengths हैं आप उनको exploit कर सकते हो, और weaknesses को overcome कर सकते हो. ठीक है. देन ऑब्वियसली इट विल हेल्प यू टू फाइट कंपटीशन इन द मार्केट, क्योंकि आपने सब कुछ अच्छे से लिखा है, सब कुछ डिटेल्ड है, तो आपने एनालिसिस करा है, फीजिबिलिटी एनालिसिस करा है, सब कुछ करा है, तो आपको पता है कि यू आर नॉट गोइंग ब्लाइंड फोल्डेड इन द मार्केट. You know what is the scenario, and you can fight competition and you can build yourself in the market. ओके, फिर इट इज अगेन इम्पोर्टेंट, अगर आपको ये लग रहा है कि आपको अपना बिजनेस एक दूसरे बिजनेस के साथ मर्ज करना है, जैसे नेटफ्लिक्स सोच रहा था कि मैं टाटा स्काई के साथ मर्ज कर जाऊं और कुछ हो जाए मेरा. ठीक है, तो अगर इस तरह से कुछ सिनर्जीज आपको बनानी है अपनी, तो बिजनेस प्लान इज अगेन इम्पोर्टेंट. ओके. Then importance of business plan, I think this you can do on your own. There is nothing much to it. I will directly come to the pitfalls that should be avoided while planning or writing a business plan. So it always says that set realistic goals. देखो, हम बहुत बार भावनाओं में आके या ओवर एंथुजियास्टिक होके हम बहुत अनरियलिस्टिक गोल सेटअप कर लेते हैं अपने बिजनेस के लिए. ठीक है. मानो you are into the garment industry and you just set the goal in the very first पे आप ये बोलते हो, आप अभी इंडिया में भी नंबर 1 नहीं हुए, इंडिया में चलो अभी आप दिल्ली में भी नंबर 1 नहीं हुए, और आपने अपने गोल में लिखा दैट आई वांट टू बी द नंबर 1 कंपनी इन द वर्ल्ड. इट्स अ बकवास का गोल. रियलिस्टिक गोल तो बनाओ, पहले दिल्ली में तो नंबर 1 बन के दिखाओ, तभी तो जाओगे उसके ऊपर, देन ओनली यू विल क्लाइंब अप द लैडर. सो ट्राई टू हैव रियलिस्टिक गोल्स. ओके. रियलिस्टिक होना चाहिए, और बहुत ज्यादा पेसिमिस्टिक भी नहीं होना चाहिए. ऐसा भी नहीं होना चाहिए कि आपको लगे कि अरे नहीं, हमारा तो ऐसी बिजनेस है, पता नहीं कोई खरीदेगा नहीं खरीदेगा. ये अप्रोच भी सही नहीं है. तो ना ज्यादा मतलब एक्सट्रीम्स में नहीं जाना. यू हैव टू वॉक द मिडिल वे. फाइन. देन एंटिसिपेट ऑल दी पॉसिबल रोड ब्लॉक्स. तो अब आपको ये लग रहा है कि आपके बिजनेस में जो भी रोड ब्लॉक्स हैं उनको प्लीज अच्छे से आइडेंटिफाई करिए, अपना इन्वायरमेंट अच्छे से स्टडी करिए. ठीक है. लोगों का पैटर्न अच्छे से स्टडी करिए, क्या थ्रेट्स हो सकते हैं, क्या लिमिटेशंस हो सकते हैं, गवर्नमेंट क्या प्रॉब्लम्स क्रिएट कर सकती है, क्या गवर्नमेंट क्या सपोर्ट कर सकती है, लोगों का पैटर्न क्या है, कंजम्पशन पैटर्न क्या है. तो आपको ये सारी चीजें जो है वो पता होनी चाहिए. तो जो भी आपको लग रहा है कि कोई भी दिक्कत आ सकती है, तो आप उसको आइडेंटिफाई करो, और साथ ही साथ एक स्ट्रैटेजी बना के रखो कि अगर ये दिक्कत आएगी तो आप कैसे उसको ओवरकम करोगे. ठीक है. नाउ देन अ प्रॉपर स्ट्रक्चर. देखो, बिजनेस प्लान का एक प्रॉपर स्ट्रक्चर है, वो कैसा दिखता है मैं अभी अभी आपको दिखाऊंगी नीचे. ठीक है. तो एक वो जो स्ट्रक्चर है आप उसको फॉलो करने की कोशिश करो, और जितने डिटेल में लिख सकते हो उतने डिटेल में लिखो. देन रेलिवेंट एंड करेक्ट इन्फॉर्मेशन. देखो, आप जो भी बिजनेस प्लान बना रहे हो, प्लीज उसमें सच लिखो. ठीक है. अ, अगर आप उसमें झूठ लिख रहे हो या ऐसी बातें लिख रहे हो जिससे बिजनेस को नुकसान पहुंच सकता है, मानो आपको ये लग रहा है दैट द टैक्स रेट्स आर वेरी हाई, एंड यू आर सेइंग कि मैं टैक्स रेट अवॉइड करने के लिए क्या करूंगा, मैं ना बंदे को रिश्वत खिला दूंगा और मैं टैक्स नहीं पे करूंगा. ऐसी बातें आप लिख रहे हो, तो दिस इज नॉट द राइट वे. ओके. सो यू कांट डू ऑल दीज थिंग्स. So come back to the real world and then write down all those things. Then unambiguous, concise and detailed. देखो, अगर आप कोई भी चीज जो है वो ढंग से एक्सप्लेन ही नहीं कर पा रहे हो अपने बिजनेस प्लान में, चाहे वो कंपटीशन से लिंक्ड है, टेक्नोलॉजी से लिंक्ड है, बिजनेस एनवायरनमेंट से लिंक्ड है, कि लोग कैसे होंगे, क्या कस्टमर्स को आप देख रहे हो, अगर वो अनएम्बिगुअस है, अगर आपने ठीक से एक्सप्लेन ही नहीं कर रखा, तो chances of success of your business are very poor. ओके. देन इनकॉर्पोरेशन ऑफ स्टेक होल्डर्स पर्सपेक्टिव. अब ये स्टेक होल्डर्स कौन होते हैं बेटा? ये स्टेक होल्डर्स होते हैं लाइक योर क्रेडिटर्स, योर शेयर होल्डर्स, योर फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, बैंक्स, योर सप्लायर्स ऑफ रॉ मटेरियल. दीज ऑल आर योर स्टेक होल्डर्स. ओके. तो आप जब भी कभी बिजनेस प्लान बना रहे हो, तो आप बताओ कि स्टेक होल्डर्स के पॉइंट ऑफ व्यू से हाउ इज इट गोइंग टू एड वैल्यू. सो राइट इट डाउन. ओके. Now let us come to the contents of the business plan. कि आखिर एक business plan की अगर बात करें तो उसके अंदर क्या क्या होता है. वैसे तो देखो, business plan का कोई as such हम नहीं कह सकते. कई लोगों का business plan 2-3 पेज का भी होता है, और कई लोगों का it runs into thousands of pages also. So there is nothing of that sort that I can put it in a watertight compartment and tell you कि नहीं, इतने पेज का होना चाहिए.
ठीक है, तो इसका एज सच कुछ ऐसा रूल नहीं है, बट हाँ आइडियली क्या होना चाहिए, लेट अस जस्ट टॉक अबाउट इट. So first of all, look, there should be an introductory page which tells about the name, address, the website, the email ID of the company, some of the basic details that everybody wants to know. Then you should try to give an executive summary. एग्जीक्यूटिव समरी क्या होता है कि बेसिकली जो आपने आगे पूरी कहानी लिखी है, अपनी आपने पूरी रामायण लिखी है, उसका जो सार है, मतलब वो आपको लिखना है. तो आपका बिजनेस क्या करेगा, किसको पर्टेन करेगा, टेक्नोलॉजी वगैरह वगैरह, उसको बिल्कुल शॉर्ट क्रिस्प करके एक छोटी सी समरी बना के आपको यहाँ पे देनी है. ठीक है. Then next is the business description. Now, look, business description will start with the general information about what your company is going to do. Okay, what is the mission and vision of the company. Okay, potential क्या है, ठीक है, क्या की एलिमेंट है आपके बिजनेस का, क्या यूनिक फीचर है अपने बिजनेस का, जस्ट राइट डाउन ऑल दीज थिंग्स. क्या प्रोडक्ट और सर्विसेज आप ऑफर करोगे, हाउ आर दे डिफरेंट फ्रॉम अदर थिंग्स गोइंग ऑन इन द मार्केट. ओके, आपका पार्टनरशिप फॉर्म है, कंपनी फॉर्म है, क्या फॉर्म है, कहाँ से आपने पैसा उठाया है, क्या किया है, थोड़ा सा मतलब उसके बारे में आप लिखो. ठीक है. उसके बाद आप एक इंडस्ट्री एनालिसिस करो. इंडस्ट्री एनालिसिस में आप क्या करेंगे, इंडस्ट्री एनालिसिस में बेसिकली यू विल ट्राई टू डिस्क्राइब द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द इंडस्ट्री इन विच यू आर ट्राइंग टू एंटर. Okay, so like you will tell that what is the size of the firm. By size of the firm I mean that different people define it different ways. You can define it in terms of capital, in terms of number of people that you are employing. Okay, then what growth rate are you expecting in the industry. Okay, what is going to be the structure of your industry. क्या profit margin आप expect कर रहे हो. क्या कोई environmental concern है जिसके लिए आपको worried होना चाहिए, जैसे आजकल गवर्नमेंट जो है वो बहुत conscious हो गई है, especially with plastic related things. And this is said that try to use less and less of plastic. So and people are also becoming very very environmental conscious these days. Like you will see that people, they say that we don't want foam glasses or anything like that. Instead of that, we should use, let us say, कांच का ग्लास या स्टील का ग्लास जो कि रीयूजेबल हो. तो आजकल इसकी तरफ हमारा ध्यान जो है वो बहुत ज्यादा जाने लगा है, दैट यू कैन रीयूज, रिसाइकल थिंग्स. एंड स्पेशली आजकल हम बच्चों को बहुत ज्यादा एम्फेसिस करके सिखा रहे हैं कि एनवायरनमेंट इतना ज्यादा जरूरी है हमारे लिए. यू आर सीइंग, वी ऑल आर विटनेसिंग like what the environment is doing to all of us. And if we don't take care of the environment, then how can it impact us. All of us are seeing now. तो इन्वायरमेंट का जो कंसर्न है वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है. आपको देखना है कि क्या आप ऐसी इंडस्ट्री लगा रहे हो जिससे बहुत ज्यादा टॉक्सिक केमिकल्स और सब कुछ प्रोड्यूस होंगे. ठीक है. तो आजकल ये चीजें जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट हो गई है, बिकॉज इन्हीं चीजों से बीमारियां बढ़ रही हैं आजकल. So इन सब चीजों का आपको ध्यान रखना पड़ेगा, because now the government is very strict in relation to the environment, especially if you are thinking of going abroad and setting up anything. So anything which emits a very high level of carbon dioxide, or which is polluting their rivers or anything, you will be imposed with huge fines. आपका business भी बंद किया जा सकता है, इतने strict rules and regulations है. ठीक है, तो आपको उन सबका ध्यान रखना पड़ेगा. फाइन. देन उसके अलावा फिर आप ये बता सकते हो कि अभी क्या करंट प्रैक्टिसेस हैं, आप कैसे अडेप्ट करोगे कंपटीशन को जो कि मार्केट के अंदर है, आपकी क्या स्ट्रैटेजी रहेगी. तो आप उन सब चीजों के बारे में बता सकते हो. ओके. देन यू विल डू अ मार्केट एनालिसिस. नाउ लुक, मार्केट एनालिसिस इज बेसिकली आप जिस मार्केट में एंटर करने की कोशिश कर रहे हो. मानो आपने डिसाइड करा कि हम यूपी के एक गांव में एंटर करेंगे. ठीक है. तो क्या है भैया उस गांव की, क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, क्या उसमें ऐसा है. मैं लेटेस्ट से यू वांट टू एंटर इनटू टायर 1, टायर 2, टायर 3 सिटीज. यू वांट टू, आजकल लोगों को बड़ा शौक है ना ट्रेंडी क्लोथ्स पहनने का. आपने बड़ा सोचा कि चलो मैं ना ऐसा एक मॉल टाइप लेके आऊंगा जो मैं टीयर 1, टीयर 2, टीयर 3 सिटीज में एस्टैब्लिश करूंगा, जहाँ पे पीपल हु हैव लिमिटेड मींस एंड दे वांट टू हैव वेरी वेरी ट्रेंडी क्लोथ्स, दे कैन बाय देम एट अ वेरी गुड प्राइस. तो इस तरह से आपको ना डिस्क्राइब करना पड़ेगा कि आप कैसे उसको कैप्चर करोगे. ठीक है. क्या कोई कंपटीशन ऑलरेडी एग्जिस्ट करता है वहां पे, क्या ऐसी दुकानें हैं वहां पे जो 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 एग्जैक्टली मॉल की तरह भी नहीं है.
बट वो मॉल जैसी दिखती हैं और इस तरह की चीजें ऑफर करती हैं। क्या ट्रेंड है ऐसा मार्केट में, क्या लोगों की डिमांड है ऐसी चीजों की वहां पे, तो ये सब चीजों का आपको देखना पड़ेगा। Then you have to see the marketing plan also, that you know what marketing techniques would you use. There are so many marketing techniques. You will use advertising, personal selling. एडवर्टाइजिंग में भी क्या यूज करोगे, टीवी यूज करोगे, न्यूज़पेपर यूज करोगे, रेडियो यूज करोगे, ऑनलाइन मार्केटिंग यूज करोगे, तो कैसे यूज करोगे, कैसे अपने आप को डिफरेंशिएट करोगे मार्केट में, यू नो यू हैव टू डिस्कस अबाउट दैट। देन द ऑर्गेनाइजेशन प्लान, ऑब्वियस सी बात है, एक हायरार्की ले डाउन करोगे कि भैया कोई सीईओ होगा नहीं होगा, सीईओ के बाद सीएफओ होगा नहीं होगा, उसके बाद मैनेजिंग डायरेक्टर होगा नहीं होगा, फिर जनरल मैनेजर होगा नहीं होगा, वाइस प्रेसिडेंट होंगे अलग अलग फंक्शंस के, एम्प्लॉइज होंगे, क्या हायरार्की होगी। या फिर इट वुड बी समथिंग दैट व्हिच इज अ पैरेलल फॉर्म ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, नो एज सच हेड्स, like generally it happens in the case of startups that they don't have any such formal structure in the organization. You just are employed for a particular task, you can report to the CEO directly, nothing, no hierarchy, nothing like that. Okay, तो क्या रहेगा, हायरार्कीज क्या रहेंगी, जो पोजीशन आप क्रिएट कर रहे हो उस पर क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज रहेंगी, क्या अथॉरिटी रहेंगी, क्या काम आप एक्सपेक्ट कर रहे हो, तो वो सब आपको ले डाउन करना है। Then next is the operations part. Then in the operations part, you are going to discuss that this is basically with respect to your product or service, that whatever you are intending to offer, then do you have that setup ready, do you have your factory ready if you are producing a product. ओके, तो उसमें क्या आप सब कुछ खुद ही करोगे या आप काम को आउटसोर्स करवाओगे, नया प्रोडक्ट कैसे डेवलप होगा, लेबर कहाँ से आएगी, मशीनरी कैसे आएगी, रिस्क क्या है, क्या कोई पेटेंट कॉपीराइट चाहिए आपको अपने प्रोडक्ट के लिए, तो इन सब चीजों के बारे में अगेन वी विल टॉक इन द ऑपरेशंस प्लान। ठीक है, देन इज द फाइनेंशियल्स प्लान, ये तो फिर वही वापस आ गई, ये तो डिटेल्ड फाइनेंशियल एस्टिमेट है, आपको अपना एक प्रोजेक्टेड कैश फ्लो स्टेटमेंट, फंड फ्लो स्टेटमेंट, एक प्रोजेक्टेड पीएनएल टाइप बनाना पड़ेगा, जिसके अंदर आप बताओगे कि हम ये एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि डिमांड इतनी होगी, उसके बेसिस पे इतने इनफ्लोज आएंगे, इतना आउटफ्लो होगा। तो बहुत सारी बजटिंग की टेक्निक्स यूज होती हैं, आप आई थिंक मैनेजमेंट अकाउंटिंग अगर आपका पेपर है तो आप उसमें पढ़ रहे होगे ये सारी चीजें, तो उस तरह की चीजें हम यहाँ पे बनाते हैं। ठीक है, अब एक आप ये सैम्पल बिजनेस प्लान है, which you can just see. So like you can see that this is the outline of the business plan. Just give me a minute. Okay, so look, you have the introductory page. So like I told you, name of the firm हो गया, address of the firm हो गया, nature of business हो गया। ठीक है, फिर एक एग्जीक्यूटिव समरी आप बना सकते हो, 2 या 3 पेजों की एक ओवरव्यू दे सकते हो आप बिजनेस का। इसके अलावा आप बिजनेस का फिर डिस्क्रिप्शन दोगे, जिसके अंदर आप बताओगे व्हाट इज द मिशन एंड विजन ऑफ द कंपनी, क्या प्रोडक्ट और सर्विस आप ऑफर कर रहे हो, साइज क्या है बिजनेस का, एंटरप्रेन्योर्स कौन है, जैसे आजकल बड़ा लिखा जाता है ना, आईआईटी से आया है एंटरप्रेन्योर, आईआईएम से आया है, हार्वर्ड से पढ़ के आया है, थोड़ा सा एंटरप्रेन्योर्स के बारे में बताइए। फिर एक इंडस्ट्री का एनालिसिस दीजिए कि आप क्या आउटलुक एंड ट्रेंड्स होंगे, क्या साइज होगा इंडस्ट्री का, क्या ग्रोथ रेट होगा, क्या इंडस्ट्री फोरकास्ट होगा, तो वही सारी बातें हम यहाँ पे करेंगे। फिर एक मार्केट एनालिसिस कीजिए, जहाँ पे टारगेट मार्केट क्या होगा, उसका साइज क्या है, उसमें ट्रेंड्स क्या चल रहे हैं अभी, क्या लोगों की एक्सपेक्टेशन है, क्या कंपटीशन लेवल है, आप क्या मार्केट शेयर एक्सपेक्ट कर रहे हो, आप टारगेट कर लोगे। Then try to make a marketing plan whereby you talk about whatever strategies you will use for your marketing, for your pricing, for your promotion, advertising, whatever you are planning to use. So make a marketing plan. Marketing is no easy game, it's very difficult, and it can be costly also at the same time. Okay, so you have to really put in a lot of efforts and think इसमें क्या अच्छी चीज रह सकती है। Generally, like TV is the most expensive source of advertising, so we have cheaper things now, like radio, newspaper, the most cheapest being online advertising. Okay, people like you can advertise on Amazon, you can advertise on Flipkart, you have those side mein ads running now, whereby you can always display your products and advertise, so all those things are there, so you need to have a detailed look at it.
देन योर ऑर्गेनाइजेशनल प्लान, व्हाट विल बी द फॉर्म ऑफ ओनरशिप, क्या रहेगा आपका ओनरशिप, पार्टनरशिप जा रहे हो, एसपी जा रहे हो, सोल प्रोप्राइटरशिप जा रहे हो, कंपनी फॉर्म जा रहे हो, कहाँ जा रहे हो आप, आपके की स्टेक होल्डर्स कौन कौन होंगे जो आपके बिजनेस में इंटरेस्टेड होंगे, क्रेडिटर्स हैं, शेयर होल्डर्स होंगे नहीं होंगे, प्राइवेट कंपनी बना रहे हो, पब्लिक लिमिटेड कंपनी बना रहे हो, उस हिसाब से आपके अलग अलग स्टेक होल्डर्स होंगे। ठीक है, तो वो कौन है, फिर की पर्सनल इन्वॉल्व। बहुत बार ऐसा होता है कि आपकी कंपनी कुछ बंदों के बिना चल ही नहीं सकती, तो आपको आइडेंटिफाई करना पड़ता है कि अरे अगर आपकी कोई टेक्नोलॉजी बेस्ड मानो स्टार्टअप है, आप बनाने की कोशिश कर रहे हो, तो टेक्नोलॉजी बेस्ड स्टार्टअप के लिए जो टेक्नोलॉजी डिपार्टमेंट में बंदा है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि उसके बिना आपका बिजनेस चलेगा नहीं बिल्कुल भी। तो दैट इज योर की पर्सनल। ओके, तो उस की पर्सन को आप कैसे हैंडल करोगे, उसके लिए भी आपको स्ट्रैटेजी बनानी पड़ेगी, बिकॉज वंस द पर्सन नोज दैट ही इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द कंपनी, he can ditch you at any time. देन मैनेजमेंट टीम क्या रहेगी, कैसे, कौन एचआर देखेगा, कौन फाइनेंसेस देखेगा, कौन अलग अलग एस्पेक्ट को देखेगा, आपको देखना पड़ेगा, एक टीम बनानी पड़ेगी. Then what will be the role and responsibilities of members? This is like I already said, authority, responsibility, क्या job की duties हैं जो आप expect कर रहे हो. You have to lay down everything. Then the operational plan, in which you will tell that what are the physical facilities required. अगर कोई warehouse चाहिए तो वो warehouse कौन सी city में located होना चाहिए, कौन सी best जगह है जहाँ connectivity अच्छी हो और लोगों को हम आसानी से सामान पहुंचा पाएं. आउटसोर्सिंग कैसे कर सकते हो, आउटसोर्सिंग के लिए कौन फर्म्स अवेलेबल है, क्या रिस्क इन्वॉल्व है, क्या कोई पेटेंट या ट्रेडमार्क चाहिए या नहीं चाहिए. इसके अलावा फाइनेंशियल प्लान में फिर आप फाइनेंशियल फोरकास्टिंग करोगे, पीएनएल बनाओगे, प्रोजेक्टेड कैश फ्लो बनाओगे, ब्रेक इवन एनालिसिस करोगे, बजट्स बनाओगे अलग अलग तरीके के. एंड लास्ट में ये अपेंडिक्स लगा देंगे. I think with this we are done with the business plan also. I would like to share a sample business plan with you. I don't think I'm having it right now at the moment, but I have it in my laptop. I am not sure where it is. I think all of you are connected with me on the WhatsApp group, right? So I will be sharing I think the document, the sample business plan on the WhatsApp group itself. If you have any question and answers, you can ask them. Just give me a minute. Where is your chat box? Okay, just give me one more minute. Let me just share today's file on the chat box itself. If you have any doubts, you can please post them in the chat box or in the Q&A session, wherever you feel comfortable. I have a question, ma'am. Ma'am, please tell me break-even analysis. बेटा break-even analysis is nothing but हम लोग जहाँ पे आपका cost आपके revenue के साथ equal हो जाता है उसको हम break-even analysis कहते हैं. ठीक है, मानो आपने अपनी कंपनी में 1 लाख रुपए डाला, ठीक है, मशीनरी के फॉर्म में या रिसोर्सेज के फॉर्म में, ठीक है, आपने प्रोडक्ट बेचने शुरू करे और आपने देखा कि आपका जो रेवेन्यू आया उससे वो 1 लाख रुपीज है. तो क्या है, योर कॉस्ट इज इक्वल टू योर रेवेन्यू. ठीक है, तो 1 लाख रुपए बिजनेस में डाले, 1 लाख की सेल्स आया, तो क्या आपने कुछ कमाया प्रॉफिट? द आंसर इज नो, जीरो प्रॉफिट. दिस इज कॉल्ड एज ब्रेक इवन एनालिसिस. ठीक है, कि ये आइडेंटिफाई करना कि कौन से पॉइंट पे आपकी जो कॉस्ट है वो रेवेन्यू के साथ ब्रेक इवन हो जाएंगी. तो इसको आइडेंटिफाई करने वाला जो पॉइंट होता है, दिस इज कॉल्ड एज अ ब्रेक इवन एनालिसिस. दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट. ओके, बिकॉज इफ यू आर एंटरिंग एनी न्यू बिजनेस देन यू नीड टू नो. क्योंकि देखो आप अभी बिजनेस में आए नहीं हो, आपको कस्टमर्स नहीं पता, कुछ नहीं पता, कौन है कौन नहीं है. एंड सो यू नीड टू नो कि हाँ इतनी सेल्स तो मुझे चाहिए ही चाहिए अगर मुझे यहाँ पे सस्टेन करना है. तो आपको उसी के अकॉर्डिंग फिर अपनी स्ट्रैटेजीज बना के रखनी पड़ती है. ठीक है, अगर आपका ब्रेक इवन पॉइंट बहुत ज्यादा हाई है, मतलब आपका एक्सपेंडिचर बहुत ज्यादा हाई है, या यू थिंक दैट यू विल ब्रेक इवन एट अ वेरी वेरी हाई पॉइंट, तो आपको अकॉर्डिंगली स्ट्रैटेजीज बनानी पड़ेगी. अगर आपको लग रहा है आपका ब्रेक इवन पॉइंट लो है तो ज्यादा प्रॉब्लम नहीं आएगी आपको. ठीक है, book का नाम like I told you, I am following two book. One is Abha Mathur and the other is Vandana Jain. Okay, so you can follow any one of them. Ma'am, kindly send the WhatsApp link
group. Can anybody do that? Ayush, can you do that, please? Ayush या Ankur, जो भी है, I'm so sorry, I'm getting a little confused with those names. Whoever is the CR, can you please post a link of the WhatsApp group? Okay, they have posted it. Thank you so much. You can just join the WhatsApp group. Fine. Is 10 years enough for exam? I can't comment on that. I'm sorry. Um, okay, so I think I have taken all your question and answers as well. So that would be it for the day. और कोई question है तो आप पूछ सकते हो. Otherwise, we will just end the class. Okay, so thank you all of you. Bye.